ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے جا کے کہیے گا، آپ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کلیم اللہ تھے، تو اللہ سے جا کر کہیے کہ مجھے اور روزی نہیں چاہیے، بس بہت ہے میرے پاس، کسی اور کو دے دیں، میرے سے روزی روک لیں اپنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو ضرور بات کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ ایک شخص اور رستے میں ملے، کہا موسیٰ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو تو اللہ سے کہنا کوئی روٹی دے دو نوالے سانو نکال دے وے، مجھے بھی دے دے، بھوکا مر گیا ہوں میں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا پیغام بھی اللہ کو دے دوں گا، اور اللہ رب العزت کے پاس گئے، کہا یا اللہ ایک شخص ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہو مجھے اور روزی نہیں چاہیے، مجھے اور روزی نہیں چاہیے، بس اتنی کافی ہے جتنی اللہ نے دے دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا موسیٰ اس شخص سے کہنا کہ میرا شکر کرنا بند کر دے تو میں اسے روزی دینا بند کر دوں گا۔ وہ شکر کرتا جا رہا ہے میں بڑھاتا جا رہا ہوں، وہ شکر کرتا جا رہا ہے میں بڑھاتا جا رہا ہوں، وہ شکر بند کرے گا تو میں روزی دینا بند کروں گا نا، ہیں جی؟ وہ شکر ہی نہیں بند کر رہا تو میں روزی دینا کیسے بند کر دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہیں جی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک اور بھی شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہنا مجھے بھی کچھ دے دے، اللہ مجھے بھی کوئی نوالا دے دے، مجھے بھی کوئی نوالا دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وہ جو دوسرا ہے نا اس سے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کو روزی دے دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے دوبارہ تو دونوں سے بات چیت ہوئی، تو پہلے کو اس نے کہا اللہ پاک کہہ رہے تھے، پہلے نے پوچھا آپ نے اللہ سے میری بات کی تھی کہ میری روزی بند کر دیں بس مجھے اور نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کی تھی۔ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ اس بندے سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اسے روزی دینا بند کر دوں گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا میں کیسے اللہ کا شکر بند کر دوں، میرا رواں اللہ کا محتاج ہے، میں سانس لینے میں اللہ کا محتاج، میں دیکھنے میں اللہ کا محتاج، میں چلنے میں اللہ کا محتاج، میں کھانے میں اللہ کا محتاج، میں پینے میں اللہ کا محتاج، میں پیشاب پخانے میں اللہ کا محتاج، میں زندگی اور موت میں اللہ کا محتاج، میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں، میرے تو جسم کا رواں اللہ کے قرض میں ہے۔ تو اس نے کہا پھر اللہ بھی تمہیں روزی دینا بند نہیں کریں گے، مطلب ہمارے شکر کے ساتھ ہماری روزی جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرے شخص کے پاس گئے تو اسے کہا، اس نے کہا اللہ سے میری بات کی تھی کہ مجھے کوئی روزی کا ٹکڑا دے دیں؟ اس نے کہا موسیٰ نے کہا جی کی تھی۔ کہا پھر؟ کہا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کی روزی بڑھا دوں گا۔ تو اس بندے نے کہا کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ ایک میرے پاس کپڑے تو پورے ہے نہیں، یہ جو جسم پہ ایک کپڑا اس کی وجہ سے ہوا چلی، اللہ نے وہ کپڑا بھی اس سے لے لیا۔ ناشکری اتنی بری بلا ہے کہ آپ کو ننگا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں جتنا اللہ نے دیا شکر ادا کریں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں جی، شکر ادا کریں کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے بہت دے دیا ہے، میں کہاں اس قابل تھی ہیں، میں کہاں اس قابل تھی۔ جیسے اسی شکر سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، وہ پٹدا پھردا، میرے پاس خوشی نہیں ہے، میرے پاس خوشی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں خوش نہیں ہوں۔ حالانکہ دنیا کا قیمتی ترین ہیرا تھا اس کے پاس جسے کہا جاتا کوہ نور۔ جڑے بندے ساڈے کہندے ہیں نا اجی پیسے ہوندے تے اسی بھی تہاڈے نال رومانس کردے، اسی بھی رومانٹک ہوندے، پیسے سے خوشی نہیں ملتی، خوشی تو دل کا قرار ہے، ہاں جی، خوشی تو دل کا قرار ہے، جو سکون اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ شکر سے نازل ہوتا ہے۔ پیسوں سے سکون نہیں آتا، پیسوں سے بے چینی آتی ہے، شکر اللہ کی عنایت ہے، اللہ عطا کرتے ہیں۔ اس سے کہا مجھے خوشی نہیں ہے، حالانکہ میرے پاس دنیا کا قیمتی ترین ہیرا ہے۔ ادھر گیا ادھر بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، دنیا جہان پھر لی لیکن اس کو خوشی نہیں مل رہی ہے۔
परेशान है कि क्या करूं, खुशी नहीं मिल रही। किसी ने बताया फलानी जगह पे एक अल्लाह वाला होता है, उसके पास चले जाओ, वहां से तुम्हें खुशी मिलेगी, वो तुम्हें खुशी का नुस्खा बताएगा। वो बेचैन था, अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए ढूंढता 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 जंगल में पहुंचा तो एक अल्लाह वाले बैठे हुए नजर आए हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए नजर आए। उन्होंने कहा, उनसे जाके कहता है, जी मुझे किसी ने बताया है खुशी का नुस्खा आप मुझे बताएंगे। अपनी सारी दास्तान बताई और ये भी कहा कि मेरे पास सबसे दुनिया का कीमती हीरा है कोहिनूर तक, यानी मैं इतना मालदार हूँ। बताने का मकसद ये, पर माल होने के बावजूद मुझे खुशी नसीब नहीं हो रही, कुछ बताएं जी। उन्होंने कहा, अच्छा हीरा भी है? कहा हाँ, बड़ा कीमती हीरा है। कहा अच्छा ला के दिखाओ वो हीरा। वो हीरा, अब कहते हैं बाबा जी मैं चढ़ 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 ये पहाड़ियां तो आपके पास पहुंचा हूँ, अब फिर जाऊं? कहा हाँ फिर जाओ। बाबा जी ने उसे हीरा लेने भेजा। वो उतरा उतरा आराम 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 से उतरता 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 हीरा लेने चला गया। जब हीरा लेकर वापस आया तो बाबा जी को कहा, ये है वो हीरा। कहा कितनी मालियत है? कहा बाबा जी आपको पता ही नहीं, है तो बड़ी कीमती चीज है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े मालदारों के पास होती है, हर एक के पास थोड़ी होती है। कहा अच्छा। बाबा जी ने हीरा पकड़ा और दौड़ लगा दी। अब बाबा जी आगे आगे, ओ पीछे पीछे। बाबा जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। वो सुकून खुशी लेने आया था, उसने तो टांगे तोड़वा ली भाग भाग के। बाबा जी आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहा है। इतने में बाबा जी एक ऊंची जगह पे चढ़ के बैठ गए। अब उससे चढ़ा नहीं जा रहा। वो नीचे से सदाएं लगा रहा है, बाबा जी मेरा हीरा दे दें, मैं मर जाऊंगा, ये बड़ा कीमती हीरा है। थोड़ी देर जब वो बोलता रहा तो उसके बाद बाबा जी ने वो हीरा नीचे फेंका उसकी गोद में। उसे करीब बुलाया, उसे कहा गोद फैला। वो हीरा फेंका तो उसने लंबी आह भरी। उसने कहा अब मैं सुकून में हूँ। बाबा जी ने कहा अब तुझे खुशी मिली? उसने कहा जी मिली। कहा ये खुशी वही थी जो तेरे पास थी, लेकिन तू इसकी कदर नहीं कर रहा था। जब तुझसे छिन गई तो तुझे इसकी कदर आई और तूने इसके पीछे दौड़ लगा दी। जरूरी नहीं कि अल्लाह आजमाइशों में डाले और निकाले फिर तुझे खुशी दे। खुशियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमारे घरों में हैं, हमारे पास हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं क्योंकि हम उस चीज की तलब करते हैं जो हमारे नसीब में है ही नहीं। हम दूसरों के दस्तरखान देख के अपनी रालें गिराना शुरू कर देते हैं, दूसरे के नसीब देख के अपने ऊपर रोना शुरू कर देते हैं, जबकि जो हमारे नसीब में है वो हमें मिल चुका है और हम और भी ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और भी दे सकते हैं। कोई दुख है तो जी करें ना, बात की जाती है ना। जब कभी दुख होता है तो दुख आपके दूर कौन कर सकता है? अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह को अपने दुख सुनाइए, अल्लाह को बताइए ना, जैसे हम किसी अपने को बताते हैं, अल्लाह मैनू आ दुख आ परेशानियां आ मेरे नाल मसला बन गया, कोई हाल नहीं कर पा रहा। हम किसी को कुछ समझते हैं तो अपना दुख बताते हैं ना उसको भी। ऐसे ही अल्लाह की जात को बड़ा समझकर अपने दुख उनसे बयान कीजिए, अल्लाह से। अल्लाह आपके दुखों का ऐसा मदावा करेंगे कि इसके बाद आपको किसी से अपना दुख बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। जब आप अल्लाह से दुख अपने बयान कर देंगे इंशाअल्लाह, तो किसी से आपको दुख बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये पूरा यकीन है मेरा। अच्छा, कमजोर शख्स, असल में कमजोर इंसान कौन है, उसकी कौन सी निशानियां हैं? ये नजर आए तो मोहतात हो जाए, और अगर खुद से भी मोहताज हो जाए, अगर आपके अंदर ये खामियां नजर आए या निशानियां नजर आए, और तौबा करें ताकि अल्लाह आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए। कमजोर इंसान की सबसे पहली निशानी है वो माफ नहीं करेगा। आप कभी उसके साथ बैठ जाए ना तो 5 साल 10 साल पुराना किस्सा, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की पुरानी बात, किसी की कोई ऐसी चीज जताता रहेगा। तुसी आ कीता सी, तुसी आपने ये किया था मेरे साथ, आपने ये किया था, मैं नहीं। आप इस नेगेटिव इंसान के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर भी ये नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ा अमल है।
माफ करने वाला और माफी देने वाला बड़े दिलेर होते हैं, जो माफ नहीं कर सकता वो बड़ा कमजोर इंसान है? वो बड़ा कमजोर इंसान है। तो इसलिए माफ करने वालों में, अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह आपके गुनाहों को जल्दी जल्दी माफ कर दे, तो फिर आप भी अल्लाह से माफी मांगिए, आप भी माफ करने में पहल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ कर दे, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तो हमें जल्दी माफ कर दे, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करते। तो इसलिए आज से अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाइए जी, लोगों को माफ कीजिए, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए, लोगों को सहना सीखिए, सहना सीखिए। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है ना कि जो रिश्तेदारियां निभाता है, जो रिश्तेदारियां निभाता है उसको हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। तो रिश्तेदारियां तो निभनी ही बर्दाश्त से है ना जी, इग्नोर करने से है। बार बार नुक्ताचीनियां, तुसी आ नहीं किया, तुसी वो नहीं किया, फलाने वेड़े ते आ सी, फलाने वेड़े ते वो सी, फलाने वक्त पे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो इन सब चीजों से मुझे और आपको बाहर आना है। दिल को बड़ा कीजिए। अगर आपने अपने ईमान का टेस्ट करना है ना कि किस इंसान में ईमान ज्यादा और किस में कम है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि जिसका जितना यकीन अल्लाह पे ज्यादा है, उम्मीद ज्यादा है, उसका इतना ईमान पुख्ता है। जो जितना अल्लाह से पुरुम्मीद होगा कि मुझे अल्लाह से वास्ता भाई, रिश्तेदारों से क्या। कुरान की एक आयत है ना कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, उसे यही बात समझाई जा रही है कि अपनी आमाल से, अपने हालात से नाउमीद हो जाओ, लेकिन मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। जिस इंसान का यकीन अल्लाह की रहमत की तरफ है, वो कभी भी नाउमीद नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको मुझसे जैसा गुमान होता है मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। तो आप गुमान अच्छा रखिए अल्लाह से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके मामले अच्छे करेंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से। इंशाअल्लाह हो नहीं सकता पर अल्लाह कर सकता, ये वाला जुमला ले आइए। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कर सकता। बेशक सारे हंस रहे हों बज़ाहिर आप पे कि भाई कौड़ी जेब में नहीं, और जुमले देखो, वो दुकान पकौड़ों की, कारोबार पकौड़ों का और बातें करोड़ों की, वो वाला हंस रहे हो लोग। लेकिन हमसे भाई ताल्लुक हमारा अल्लाह से, ये कनेक्शन हम अल्लाह से रखें अपना, है ये कनेक्शन हो मेरा अल्लाह के साथ, तो इंशाअल्लाह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत कुछ नवाजेंगे। हैं अपने आप के अल्लाह के साथ कनेक्शन ये हो हमारा, अपना कनेक्शन अल्लाह से उस लेवल का रखें कि एक साहब आए, वो कहने लगे कि पैनाडोल में मुझे शिफा मिली जी। अब वो जो बैठे हुए थे ना, उनका वो कनेक्शन था अल्लाह से, वो कनेक्ट इस लेवल के थे अल्लाह से कि उन्होंने कहा इसने शिर्क किया। इसने क्यों कहा कि पैनाडोल में शिफा थी? अल्लाह ने पैनाडोल में शिफा रखी, जुमला बदला, अल्लाह ने पैनाडोल में शिफा रखी थी। इस लेवल पे कनेक्ट कर जाएं अल्लाह के साथ। वो जो मुसलमान है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है और मोमिन हर वक्त हालत नमाज में रहता है, उनका ताल्लुक नहीं टूटता। कुछ पल तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, वो लम्हे कर रहे हैं मुझे शर्मसार से। उसके लिए फिर उठना बैठना जागना सोना हर वक्त ही नमाज है। सो तुमने जाना है, इबादत से रूह ने महरूम हो जाना है। अल्लाह अकबर। तो अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना लीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी इबादत को, अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ, कि दुनिया कुछ नहीं, दुनिया वाले कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह का सब कुछ। ये यकीन हमारे अंदर हो, बस ये यकीन होना चाहिए, है? सबसे अच्छा अमल है कि लोगों के दुख दूर कीजिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा। दुख दूर कीजिए, खिलाइए लोगों को, वही बांटिए ना जो आपको अल्लाह ने दिया है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो मैं की वंडा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या सदका करूं। अरे जो कुछ आपको अल्लाह ने दिया, कोई हुनर दिया होगा वो बांटिए,
آپ کو اللہ نے حدیثیں پہنچا رہا ہے اللہ آپ تک کلاس کے ذریعے، آپ وہ بانٹیے. کچھ بھی دیا تو ہے، کچھ نہ کچھ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، وہی بانٹیے آپ. علم بانٹنا بھی صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کی مدد کریں گے. مدد لینے کے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں.